Hi friends, welcome back to the world of nucleus. Today we are going to study nuclear fission. While studying binding energy of nucleus, we had seen that lighter nuclei, they have low binding energy per nucleon. Therefore, they are unstable. Their stability is less. So in order to achieve stability, two lighter nuclei join together to form a little bit heavier nuclei. Okay, so that was nuclear fusion. On the other side, heavier nuclei also had low binding energy per nucleon, therefore their stability was also less. In order to achieve stability, a heavier nuclei splits into two almost equal parts, and that phenomenon is called nuclear fission. That is what we are going to study here. Now, two scientists named Hahn and Stresemann, they did certain experiments. In one of their experiments, they had taken uranium 92-235 nucleus, that is a radioactive uranium. They bombarded a neutron on it, and they found that this uranium split it into two almost equal parts. They were niobium 4199 and antimony 51133. On bombarding fast neutron on a uranium nucleus, on a uranium 235 nucleus, they found that this nucleus split into two parts. It absorbed the neutron first, was already radioactive, absorbing the neutron became more unstable, and to achieve stability, it divided into two parts, niobium and antimony. Now let's see what the total makes. Z ka value, balancing the charge, 92 plus 0, 92, 41 plus 51, 92. The charge is balanced. 235 plus 1, 236 nucleons. Here it is 99 plus 133. That makes 232 total. तो 236 है यहाँ पे टोटल, एंड यहाँ पे 232 है. टोटल नंबर तो बैलेंस्ड है. टोटल नंबर इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. द total nuclear number does not balance. That means there is an imbalance in neutrons. So that means what we can say is that here we will get 0, 4. यानी no proton but 4 nucleons. तो all the 4 will be neutrons. इससे क्या लिखते हैं यहाँ पे? It is 4 neutrons which are released. Okay. So in the process 4 neutrons are released. What happened here is a heavier nuclei like uranium 235 split it into two almost equal parts with intermediate masses. And so binding energy increased, and in the process 4 neutrons were emitted. Now niobium and antimony, they are also stable. They are stable. Unstable nuclei split into two almost equal parts. No, they are still unstable. Emitting certain other radiations, they become stable. So they further emit radiations to get stability. Okay, तो ये हुआ. फिर यहाँ पे in the process some energy approximately 200 million electron volt is produced. 200 million electron volt energy is produced. Now यहाँ पे जो phenomenon हुआ वो कैसा था? यूरेनियम के न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया, split into two almost equal parts. One was Nb, another was Sb. Okay, and in the process 4 neutrons were produced plus energy equal to 200 MeV. ना जरूरी है कि ये दोनों होंगे? नहीं. एवरी टाइम यू बॉम्बार्ड अ न्यूट्रॉन ऑन अ यूरेनियम न्यूक्लियस, दीज टू विल बी द प्रोडक्ट. ऐसा जरूरी नहीं है. इट्स नॉट अ केमिस्ट्री रिएक्शन. केमिस्ट्री बेस्ड रिएक्शन नहीं है कि हमेशा व्हेन दिस टू रिएक्ट ऑलवेज दीज टू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. ऐसा नहीं है. इस रिएक्शन में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जब भी न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करो यूरेनियम पे, टू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म. पर कौन से दो होंगे? तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो हार्न एंड स्ट्रेसमैन ने किया था उस टाइम पे नियोबियम एंड एंटीमनी आया. There can be anything else also, another thing also. It is found that almost 100 radioisotopes of 20 different elements having their Z ranging from 20 to 21 to 52 are produced. 100 different radioisotopes of 20 different elements having their Z ranging from 30 to 55. There, any of them can be produced. कोई भी दो radioisotope आएंगे उसमें से, बराबर है. एंड कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वो तो कौन से दो प्रोडक्ट आते हैं उसके ऊपर से डिपेंड है. एंड कितनी एनर्जी आएगी तो इट बी आल्सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स व्हिच आर फॉर्म. पर एनर्जी रिलीज होती है, इट्स ऑलमोस्ट नियर टू 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, यहाँ पे न्यूक्लियर स्प्लिट हुआ है तो दिस इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन.
ड्यूरिंग दिस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। एक बार फिर से बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ये दो ही फूटेंगे, ये दोनों ही निकलेंगे, इट कैन बी एनीथिंग। सी दिस इज अ गेम ऑफ कैरम। In the carom, the very first strike, what you do is you put all the dices, you arrange them properly. Now you give first strike using the striker. तो हर बार जब फर्स्ट स्ट्राइक दोगे तो क्या सिमिलर ही फूटेगा? हर बार every time will be a different combination depending on the strike. किस एंगल पे स्ट्राइक करते हो, कितने एनर्जी से स्ट्राइक करते हो, सेम सिचुएशन इधर भी है। तो देयर कैन बी एनी टू रेडियो आइसोटोप्स हैविंग देयर Z ranging from 30 to 55। ओके, तो ये हो सकता है। तो दिस इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। अब ऐसा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कैरी किया था हानेस टेस्टमैन ने। देयर आर पॉसिबल मेनी डिफरेंट रिएक्शंस अवेलेबल हियर। हमने टेक्स्ट बुक में 3 दिए हुए, मैंने आपको यहाँ पे एक समझाया है, बराबर है। सिमिलरली अदर 2 आर आल्सो गिवन। क्लियर? तो ये हो गया रिगार्डिंग न्यूक्लियर फिशन। इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को समझाने के लिए जो यूज किया है, ये बोलता है कि व्हेन नाइट्रोजन इज बॉम्बार्डेड यूरेनियम एब्जॉर्ब्स इट कंप्लीटली, ये उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा एंड सो बिकम्स लिटिल बिट अनस्टेबल एंड देन स्प्लिट्स इनटू 2 अदर पार्ट्स। दिस एक्सप्लेनेशन is called liquid drop model. It is just an explanation given to understand this one. जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता होगा, पर अभी तक का ये मॉडल जो है वो इसको समझाने, इस रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन के रिएक्शन को समझाने में मोर सेटिस्फैक्टरी है। ओके, इसलिए व्हाट वी से दैट न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कैन बी अंडरस्टूड मोर सेटिस्फैक्टरीली बाय लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ओके, अच्छा ये तो हुआ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। एवरी टाइम आवर यूरेनियम न्यूक्लियस स्प्लिट्स देयर इज सम एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट एनर्जी इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में पावर जनरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग दिस एनर्जी। अब वहां पे क्या होता है, ये मटेरियल ले लिया यूरेनियम का U-235, पूरा सैंपल ले लिया, एक न्यूक्लियस नहीं, अ सैंपल ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, बराबर। यूरेनियम का सैंपल ले लिया, उसके ऊपर एक फास्ट न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया। नाउ दिस फास्ट न्यूट्रॉन स्ट्राइक्स अ यूरेनियम न्यूक्लियस, splits into 2 parts and neutrons are released. सपोज 1 2 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। अब ये 3 न्यूट्रॉन जो रिलीज हुए वो फर्दर दूसरे न्यूक्लियस में जाकर फिशन रिएक्शन करेंगे एंड फर्दर मोर न्यूट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड, बराबर है। फर्स्ट स्टेज में एक न्यूट्रॉन इंस्टेंट किया तो वो एक यूरेनियम न्यूक्लियस को स्प्लिट करता है, फिशन रिएक्शन करता है एंड इन द प्रोसेस सम न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। दीज न्यूट्रॉन्स फर्दर इंड्यूस फिशन रिएक्शन अदर न्यूक्लियाई एंड thus more neutrons are produced and ये जाके फिर और न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। तो such a chain of reaction starts. This is called nuclear chain reaction. This is called nuclear chain reaction. And during each fission reaction, energy is released. यानी कि अल्टीमेटली देखोगे तो थोड़ी देर में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी and that's nothing but nuclear energy which is converted into electricity and that's nuclear power. न्यूक्लियर रिएक्टर में ये काम होता है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में। ये क्या क्या है वो तो देख लिया हमने, थोड़ा ब्रीफ में आइडिया लिया, डिटेल में क्या आगे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या है, कैसे होता है, फर्दर व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू हैव अ सक्सेसफुल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन एंड उसके बाद विल गो ओवर टू एन आउटलाइन डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, जो वी जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर फिशन। Now what is this nuclear chain reaction? Nuclear chain reaction is a chain of nuclear fission reactions. आप करेंगे ना यूरेनियम सैंपल। अब यहाँ पे क्या हो गया, सपोज एक यूरेनियम सैंपल ले लिया, इसके ऊपर एक फास्ट न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करो, वो फास्ट न्यूट्रॉन किसी एक न्यूक्लियस को में फिशन इंड्यूस करेगा। इन द प्रोसेस सम न्यूट्रॉन्स विल बी प्रोड्यूस्ड। दीज न्यूट्रॉन्स इन टर्न विल बी इंड्यूसिंग फिशन रिएक्शन अदर न्यूक्लियर एंड फर्दर फिशन रिएक्शन, further neutrons will be produced. ये आगे further create करेंगे fission reaction and so on. A chain of reaction starts. Such a chain of reaction is called nuclear chain reaction. During every reaction, during every fission reaction, there is some energy release. So we find that multiplication of energy release will take place. जो एनर्जी रिलीज हो रहा है किस फॉर्म में रिलीज होता है, तो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, जो एमिटेड न्यूट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी, फिर हीट एनर्जी में भी प्रोड्यूस होता है हीट एनर्जी के फॉर्म में, एंड दिस हीट एनर्जी प्रोड्यूस हियर
is used in generating nuclear power. अब ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अगर कैरी ऑन करना है सक्सेसफुली तो क्या ध्यान रखना पड़ता है? प्रिकॉशंस नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. सबसे पहली बात तो जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए दे शुड इंड्यूस फिशन रिएक्शन अदर न्यूक्लियर. नाउ यूजुअली दीज न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस are very fast neutrons. They have high kinetic energy because that energy is released with them. So that kinetic energy is more, so they are moving more speedily. And what will happen? A neutron produced moving very speedily may escape out before inducing fission reaction. It may escape out before inducing fission reaction. बराबर है. तो उसके लिए इनको escape करना ऐसे रोकना हो and we need to continue the reaction. We have to take care that they should not escape. They should be inducing fission reaction. Okay? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनको बाहर नहीं निकलने देना है. तो फिर इस मटेरियल के आसपास a coating is done. A coating of neutron reflecting material is kept. Neutron reflecting materials are coated. अच्छा, ये जो मटेरियल है जिसमें फिशन रिएक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं फिसाइल मटेरियल. Fissile material. So in this fissile material, outside this fissile material, a coating is done of neutron reflecting surfaces. These surfaces, what they do? They do not allow the neutrons to pass out; they reflect them back. Or moderators are used. Moderators क्या करते हैं? Moderators are mixed with fissile material. Their work is to moderate the speed of neutrons. They reduce the speed of emitted neutrons. बराबर है. Thus the neutrons whose speed are reduced, they can induce fission reaction at the nuclei. बाहर भाग जाए उससे पहले fission reaction कर ले. The popular moderator used are plain water, heavy water है, graphite है, and beryllium है. These are normally used as moderators. Okay? तो ये एक बात हो गई. एक बात ध्यान रखना है कि यार न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कोटिंग कर दो या फिर मॉडरेटर्स यूज करो. बराबर है. तो दैट मॉडरेटर्स आर मिक्स्ड विद द फिसाइल मटेरियल सो दैट दे रिड्यूस द स्पीड ऑफ एमिटेड न्यूट्रॉन्स. ये एक बात हो गई. दूसरी बात कि ड्यूरिंग ईच रिएक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दैट टेम्परेचर राइजेस. एट टाइम्स इट इज फाउंड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परेचर राइजिंग टू 10⁶ केल्विन. 1 मिलियन केल्विन जितना टेम्परेचर बढ़ सकता है. एंड दैट कुड बी डिजास्ट्रस. इट मे रिजल्ट इन एक्सप्लोजन ऑफ द रिएक्टर. इससे टेम्परेचर को लो करने के लिए कूलेंट्स आर यूज्ड. कूलेंट्स आर यूज्ड यानी कूलेंट्स आर पास टू दिस मटेरियल. अब ये कूलेंट्स का काम क्या है? दे रिड्यूस द टेम्परेचर, दे एब्जॉर्ब द एक्सेस हीट एनर्जी एंड मूव आउट. ये कूलेंट्स में नॉर्मली यूज करते हैं प्लेन वाटर, फिर लिक्विड सोडियम आर वन विच आर नॉर्मली यूज फॉर एज कूलेंट्स. ओके, so as coolants we normally use further. तीसरा ना तीसरे प्रिकॉशन में हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिनोटेड बाय के, छोटा के. ना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या चीज है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंसिडेंट. यानी इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में कितने प्रोड्यूस हो वो रेशियो, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. ओके, चलो यहाँ पे देखे तो पहले स्टेप में क्या है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? 3 प्रोड्यूस हुए, अनेक इंसिडेंट था तो 3 हो गया, 3/1. सेकेंड स्टेप पे देखे तो 1 2 3 4 5 आर प्रोड्यूस्ड एंड 3 आर इंसिडेंट तो 5/3 हो गया, 1.67. तो दैट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंसिडेंट. नाउ फॉर successful nuclear chain reaction K should be nearly equal to 1. nearly equal to 1 होना चाहिए. if K becomes greater than 1 यानी कि ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, K becomes greater than 1 तो more neutrons are produced than incident. तो ज्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, बराबर, ज्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं सुपर क्रिटिकल स्टेट. सुपर क्रिटिकल स्टेट. एंड ऐसे केस में
more neutrons are produced, more reactions will occur and more heat will produce, which may result in explosion. Uncontrolled heat will be produced. क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं न्यूट्रॉन्स, इससे ज्यादा रिएक्शन होगी, ज्यादा रिएक्शन तो ज्यादा हीट जनरेट होगी एंड इट में टेम्परेचर में राइज एंड देयरफॉर इट विल रिजल्ट इन एक्सप्लोजन. तो ये तो नहीं चाहिए. दूसरी बात, इफ K becomes less than 1, तो प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस आर लेस देन न्यूट्रॉन्स इंसिडेंट, यानी 4 इंसिडेंट 3 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सिचुएशन क्या होगी? कम प्रोड्यूस होंगे तो रिएक्शन मे नॉट फर्दर कंटिन्यू. इसको बोलते हैं हम लोग सब क्रिटिकल स्टेट. सब क्रिटिकल स्टेट and this will result in stopping of nuclear chain reaction. Nuclear chain reaction stops क्योंकि sufficient neutrons ही प्रोड्यूस नहीं है, आगे गाड़ी बढ़ेगी कैसे? बराबर है. तो ना हमें सुपर क्रिटिकल स्टेट चाहिए, ना हमें सब क्रिटिकल स्टेट चाहिए, हमें K का वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 चाहिए. एंड इन दिस सिचुएशन द रिएक्टर इज सेड टू बी इन क्रिटिकल स्टेट. इन दिस सिचुएशन रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल स्टेट. तो कभी भी न्यूज़पेपर में पढ़ो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन क्रिटिकल स्टेट, यानी यूं नहीं समझना आईसीयू में आ गया कि तकलीफ वाला हो गया. नहीं, क्रिटिकल स्टेट इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द रिएक्टर. उससे ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं. अब ये K का वैल्यू मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? यू हैव टू कंट्रोल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड. बराबर है. यानी क्या करते हैं यहाँ पे, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे वो तो फिशन रिएक्शन पे डिपेंड है, वो तो अपने कंट्रोल में है नहीं. तो व्हाट विल डू? तो हियर control rods are used. Control rods, or you can say regulators are used. These are nothing but, these regulators or control rods are nothing but neutron absorbing materials. Normally boron or cadmium is used. बोरोन और कैडमियम के रॉड्स यूज होते हैं. ये रॉड कैसे रखे जाते हैं? तो यूं लगा दिए. Now these rods can automatically move in or out. They can automatically move in or out. When K becomes very much higher than 1, सुपर क्रिटिकल स्टेट आ रहा है, तो वो अंदर जाएंगे, ऑटोमेटिकली देखो एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन एंड देन कम आउट. बराबर है. यानी ज्यादा बढ़ गया है तो उसको 1 के नजदीक में लाके रॉड बाहर आ जाता है. ओके. पर सब क्रिटिकल स्टेट में अंदर नहीं जाएगा, नहीं गया तो फिर जो दुकान है वो भी बंद हो जाएगी. ओके. सो द वर्क ऑफ कंट्रोल रॉड्स इज टू अवॉइड सुपर क्रिटिकल स्टेट. Whenever there is a K, whenever the multiplication factor goes beyond K, highly above K, यानी more excess neutrons are produced, तब rods move inside automatically, absorb the excess neutrons and come out by themselves. These are the precautions to be kept in mind while having a successful nuclear chain reaction. अब इन्हीं बातों को ध्यान में रख के न्यूक्लियर रिएक्टर इज डिजाइन. तो हम लोग एक आउटलाइन डायग्राम न्यूक्लियर रिएक्टर का भी समझ लेंगे. ओके. इसके बाद जस्ट गो थ्रू दिस पोर्शन. चलो देखते हैं आउटलाइन डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, हाउ इट वर्क्स. वो यहाँ पे आइडिया आएगा. द प्रिंसिपल ऑन विच न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स इज सक्सेसफुल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. देयर इज सक्सेसफुल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अकरिंग इन न्यूक्लियर रिएक्टर. इसका पर्पस क्या है, यानी कि यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर टू जनरेट न्यूक्लियर पावर, टू जनरेट पावर फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी. ये इसका यूज है. अब देखें कैसे करता है ये काम. चलो देखो यहाँ पर ये फिसाइल मटेरियल और यूरेनियम जो हमने लिया था वो, इसको हम बोलेंगे कोर. चलो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं कोर को. दिस फिसाइल मटेरियल जिसको हम लोग बोलेंगे कोर में रखा हुआ है. फर्दर यहाँ पे इसके ऊपर न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कोटिंग कर दिया. न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टर्स आर कोटेड हियर ताकि न्यूट्रॉन बाहर नहीं जा सके. बराबर है. फिर यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स विच कैन मूव इनसाइड इन और आउट बाय देमसेल्फ. कंट्रोल रॉड्स. ओके. ये हो गया रिफ्लेक्टर्स. क्लियर. अब यहाँ पे अंदर फिशन रिएक्शन होगा, हीट जनरेट होगी. तो इसको कूल रखने के लिए, कोर को कूल रखने के लिए वी पास कूलिंग ट्यूब्स, यानी यहाँ पे कूलेंट्स पास करने के लिए ट्यूब लगा देते हैं. तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक आउटलाइन डायग्राम ले रहे हैं, इसलिए वी आर शोइंग इट दिस वे. ये कूलिंग ट्यूब्स अंदर से पास होके जिगजैग फॉर्म में होती है अंदर, पर यहाँ पे अपने सीधा सीधा बताते हैं. नहीं तो यहाँ पे अंदर का सिचुएशन कैसा होता है, द कूलिंग ट्यूब्स गो लाइक दिस.
through this material. अब कूलिंग ट्यूब में यहां से कोल्ड वाटर इज एंटर्ड, कोल्ड वाटर इज एंटर्ड, बराबर है। अब ये कोल्ड वाटर यहां से आएगा, अंदर आएगा, यानी प्लेन वाटर, हेवी वाटर जो भी यूज करें, यहां से अंदर आएगा, एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द कोर, कोर में जो हीट जनरेट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। जस्ट अ मोमेंट, कोर, तो कोर में, यहां कोर में से पास होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जो है यहां पर उसको एब्जॉर्ब करेगा एंड दैट वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम और हॉट वाटर। वो हॉट वाटर यहां से पास होता हुआ इधर आएगा एंड यहां से बाहर निकलेगा। फ्रॉम हियर कम्स हॉट वाटर। नाउ दिस हॉट वाटर इज पास फ्रॉम द चेंबर, पास फ्रॉम द चेंबर। अब ये चेंबर में हॉट वाटर यहां से एंटर हुआ, तो ये पूरा हॉट वाटर यहां पे है। अब इसके अंदर एक और ट्यूब पास हो रही है, वन मोर ट्यूब इज पासिंग हियर। यहां से वाटर इज एंटर्ड, जो कंडेंसर में से कंडेंस हो गया वाटर, ये वाटर यहां से एंटर होगा। हॉट वाटर कमिंग फ्रॉम हियर will be heating that water passing through this tube, will be heating the water passing through this tube, and that water heats into, converts into steam, and यहाँ से steam तो ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ से steam बन के निकलेगा, तो यहाँ steam बाहर आ रही है, and that steam is used, given to turbine to move the turbine flames. टरबाइन को मूव करने में यूज होगा, जो टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, बराबर है। वहां पे टरबाइन से पास होकर फिर ये हीट आएगी, इसको कंडेंसर से पास करते हैं, ये स्टीम जिसने टरबाइन को रोटेट कर दिया। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा लॉजिकल फिगर बनाते हैं। यहां पे सपोज वो टरबाइन है जिसमें ब्लेड्स लगी हुई है। अब यहां से स्टीम आई, इट कम्स हियर एंड मूव्स दिस ब्लेड, एंड फिर आफ्टर डूइंग वर्क देयर इट्स टेम्परेचर रिड्यूसेस, सो पार्टली कन्वर्ट्स इनटू वाटर, पार्टली स्टीम। फिर इसको पास करते हैं कंडेंसर में से, जहां पे अपनी एक्सेस स्टीम छोड़ देगी, हीट छोड़ देगी, दिस इज अ कंडेंसर, एंड वापस वाटर के फॉर्म में, एंड दैट वाटर इज सेंट हियर। अब यहां पे क्या हुआ, जो हॉट वाटर ने इसको गर्म किया, इस वाटर को, वो कूल हो गया वाटर, एंड वो कूल वाटर इज नाउ बैक टू कोर। यानी एक सर्कल वाटर का यहां पे चल रहा है साइकिल, दूसरा साइकिल वाटर का यहां पे चल रहा है, बराबर, दो साइकिल चल रही है। यहां से हीट जनरेट होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, एंड दैट प्रोड्यूसेस electricity here. So electrical power generated using nuclear energy. This is just an outline diagram, not the exact diagram of the nuclear reactor. There are still more complications in complex phenomena occurring here inside. But at student level, we can get this much idea. We have to take this much idea only, not beyond this. तो ये हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, जिसका पर्पस है जनरेटिंग न्यूक्लियर पावर। ओनली प्रॉब्लम नाउ इज, कोर में रिएक्शंस हुए, यूरेनियम कन्वर्ट्स इनटू समथिंग एल्स, रिलीजिंग एनर्जी रिलीज होगी, उसका तो यूज कर लिया। व्हाट अबाउट दैट मटेरियल विच इज प्रोड्यूस्ड, जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, उसका क्या करेंगे, दैट इज अ रेडियो एक्टिव वेस्ट, क्योंकि उसको तुम रीयूज नहीं कर सकते। यू रिक्वायर यूरेनियम न्यूक्लियस फॉर फिशन, द अदर इंटरमीडिएट न्यूक्लियस आर नॉट रिक्वायर्ड, एंड दीज आर यूजुअली रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो वो रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया। डिस्पोजल ऑफ दिस रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन फॉर ह्यूमन काइंड। इसीलिए दिस मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज, नो डाउट इट जनरेट्स इमेंस इलेक्ट्रिसिटी। इवन 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम यूरेनियम कैन प्रोड्यूस इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितनी इमेंस, कितना न्यूक्लियर पावर दे सकता है, पूरे वेस्टर्न ग्रिड को 1 साल तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है ये 1 ग्राम यूरेनियम, इट्स ओनली। बहुत पावरफुल है सोर्स ऑफ एनर्जी, बट द ओनली थिंग इज दैट रेडियो एक्टिव वेस्ट विच इज नाउ अवेलेबल हियर, उसका disposal is problematic, and we know that radioactive material has its own negative impact on the human life as well as environment. इसीलिए this type of generating electricity is not advisable. फिर भी government of different countries, they require nuclear, they require power, and they have this source little bit easier available to go for nuclear power, less costly also, less economical also, but only problem is the nuclear waste, the radioactive waste. ओके, देखते हैं आगे जिंदगी में शायद कुछ और भी बने कि न्यूक्लियर दिस रेडियोएक्टिव वेस्ट को रिसाइकल करने का सिचुएशन भी आए। ओके, चलो ये हो गया न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में।